ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 12 ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 12ਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੇਰੂਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ 101 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। 101 ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਸਰੋਵਰ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਦੇਹਾ। ਹਾਂ, ਸੁਦੇਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੌਕਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਲਿੰਗ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿੰਗ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਚਮਤਕਾਰ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੁਦੇਹਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਇਆ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਵਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੁਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆ, ਕੁਸ਼ਮਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਾਲੋਜੀ ਰਾਜੇ ਭੌਂਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾਠਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਰਾਠਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 240 ਫੁੱਟ ਗੁਣਾ 185 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭਾ ਮੰਡਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 17 ਬਾਈ 17 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ 'ਚ। ਕੀ? ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਕੇਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰੀ ਹਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ? ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਮਰਦਾਂ ਲਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਨਾਈਨ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਐਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਲੋਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ
ਦੂਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਂਝ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਦਾ ਮੁਗਲ ਅੰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਰਾਠਾ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ 12ਵਾਂ ज्योतिर्लिंग ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੋਰਾ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੇਸ਼ਵਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੋੜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ है कि ये उसनु और मजबूत बनाता है। तो आज हम एक बहुत ही खास मकाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पर बात करेंगे। जी, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी यानी 12वां माना जाता है। बिल्कुल वो मकामात जहाँ शिव जी खुद रोशनी के एक यूं समझे लामहदूद सुतून की शक्ल में जाहिर हुए। और नाम भी बहुत मायनेखेज है, घृष्णेश्वर या घृष्मेश्वर यानी रहम के भगवान। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाम क्यों है। जी हाँ, और ये मंदिर जैसा आपने कहा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वेरुल गांव में। अच्छा। और ये मशहूर एलोरा गारों के तो बस समझे पैदल के फासले पर है। वाव। हमारी जो मालूमात हैं वो पुरानी किताबों जैसे शिव पुराण और साथ में तारीखी हवालों और आजकल की जो ट्रैवल गाइड्स हैं उन सब पर मबनी है। तो मकसद यही है कि इस जगह की अहमियत को समझा जाए, इससे जुड़ी कहानियां, तारीख, इसकी बनावट और हाँ, वहाँ जाने वालों के लिए कुछ अमली मालूमात भी। बिल्कुल। और लगता है इसकी बुनियाद एक बड़ी गैर मामूली कहानी पर है। एक खातून थी घोषमा, उनकी जबरदस्त अकीदत और कमाल की रहमदिली पर। ये कहानी ही दरअसल इस मंदिर की रूह है। शिव पुराण में आता है कि सुधर्म नाम के एक ब्राह्मण थे। जी। उनकी 2 बीवियां थीं, सुदेहा और घोषमा। घोषमा बहुत ही नेक और क्या कहते हैं पूजा पाठ वाली खातून थी। अच्छा। वो रोजाना 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर पास ही एक तालाब था, शिवालिया सरोवर, उसमें विसर्जित कर देती। रोजाना 101, ये तो बड़ी लगन की बात है। जी हाँ, और उनकी इसी भक्ति से खुश होकर शिवजी ने एक बेटा दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक दुख भरा मोड़ भी आता है ना? अफसोसनाक। जी, घोषमा की बहन सुधेहा वो हसद में आ गई। उन्होंने घोषमा के बेटे को कत्ल कर दिया और लाश उसी तालाब में छुपा दी। ए अल्लाह, ये तो सोचना भी मुश्किल है। लेकिन घोषमा ने फिर भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। नहीं, शदीद गम के आलम में भी उन्होंने अपना रोज का नियम, वो पूजा का अमल जारी रखा। कमाल है। और यही उनकी अकीदत का यूं कहें कि इम्तिहान और इनाम दोनों सामने आए। अगले दिन जब वो पूजा के बाद तालाब पर गईं, तो उनका बेटा मौजजाती तौर पर जिंदा सलामत पानी से निकल आया। सुभान अल्लाह। और भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए, मतलब जाहिर हुए। जाहिर है वो सुधिया को सजा देना चाहते थे। लेकिन घुष्मा ने, उन्होंने क्या किया? यही उनकी अजमत है। बदला लेने के बजाय उन्होंने शिव जी से अपनी बहन सुधिया की माफी मांग ली। अपनी बहन के लिए जिसने उनके बेटे को मारा था? वाकई? जी हाँ, इतना बड़ा सदमा सहकर भी इतनी रहमदिली। शिवजी घुष्मा की इस बात से, उनकी माफ कर देने की सलाहियत से बेहद मुतासिर हुए। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने घुष्मा की दरख्वास्त मानी और उन्हें ये वरदान दिया कि वो हमेशा इसी जगह ज्योतिर्लिंग की शक्ल में रहेंगे। इसीलिए ये मुकाम घुष्मेश्वर कहलाया, यानी घुष्मा का भगवान। अच्छा, तो ये है इस नाम के पीछे की कहानी, रहम की कहानी। बिल्कुल। वैसे एक और रिवायत में नाम गिरशनेश्वर भी आता है, जिसे गर्शना यानी रगड़ से जोड़ते हैं और इसका ताल्लुक पार्वती जी से बताते हैं। ये कहानी ही इतनी ताकतवर है, तो क्या मंदिर की तारीख भी ऐसी ही है? मतलब क्या उसे मुश्किलात का सामना रहा? बिल्कुल रहा। तारीख बताती है कि असल मंदिर तो बहुत पुराना था, शायद 13वीं सदी से भी पहले का, यादव खानदान के जमाने का। लेकिन फिर 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के हमलों में उसे बहुत नुकसान पहुंचा, तकरीबन तबाही हो गया। तो ये फिर से बना? जी हाँ, और एक बार नहीं, कई बार। पहली बड़ी तामीर 16वीं सदी में हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे मालोजी राजे भोसले, उन्होंने करवाई। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कहते हैं उन्हें कहीं से छुपा हुआ खजाना मिला था जिससे उन्होंने ये काम करवाया। वाओ। लेकिन फिर सुकून नहीं मिला। 17वीं सदी के आखिर में मुगलों के हमलों में फिर नुकसान पहुंचा, यानी बार बार तबाही होती रही। सही कहा आपने। आखिरकार 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर आईं। ओ, वो तो बहुत मशहूर है मंदिरों की तामीर नौ के लिए। जी बिल्कुल। उन्होंने इस मंदिर की बड़े पैमाने पर दोबारा तामीर करवाई और आज जो हम शानो शौकत देखते हैं वो ज्यादातर उन्हीं की देन है। उन्होंने पास ही एक तालाब, पिन्याशलो
अशोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड भी बनवाया। तो ये तारीख भी सब्र और अकीदत की कहानी है। वाकई गिरकर फिर खड़ा होना। अच्छा, अब अगर इसकी बनावट को देखें तो कैसा है ये मंदिर, क्या खास है इसमें? ये सुर्ख रंग के आतिशफिशानी पत्थर से बना है। अंदाज बुनियादी तौर पर तो मराठा है, लेकिन उसमें जुनूबी हिंदुस्तान और थोड़ा हेमादिनपति तर्ज का असर भी है। हेमादिनपति वो क्या होता है? वो एक पुराना तरीका है जिसमें पत्थरों को बगैर चूने या गारे के खास तरीके से जोड़ा जाता था। अच्छा। सबसे नुमाया चीज इसका 5 मंजिला शिखर है, वो जो मंदिर का ऊंचा मीनार जैसा हिस्सा होता है। जी जी। अंदर एक बड़ा हॉल है, सभा मंडप। उसमें 24 स्तूतून हैं और उन स्तूतूनों पर शिव पुराण की कहानियों की बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी है। जबरदस्त। बाहर की दीवारों पर विष्णु भगवान के 10 अवतार और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर का मुंह मशरिक की तरफ है। और ये बात भी कहीं पढ़ी थी कि ये शायद सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है साइज में। हाँ, कुछ जराए ऐसा कहते हैं। हालांकि रूहानी अहमियत तो बहुत ज्यादा है। ये साइज और अहमियत का तजाद भी गौरतलब है। ये वाकई एक ऐसी जगह लगती है जहाँ तारीख, कहानी और अकीदत सब मिल जाते हैं। अगर कोई वहाँ जाना चाहे तो क्या खास बातें जहन में रखनी चाहिए? देखें, जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का मौसम अच्छा रहता है, मौसम खुशगवार होता है। ठीक। मंदिर खुलने का वक्त आमतौर पर सुबह सवेरे समझे 5:30 से रात 9:30 बजे तक, लेकिन श्रावण जैसे खास महीनों में औकात बदल सकते हैं। और कोई खास उसूल वगैरह? हाँ, ये बहुत अहम है। लिबास के उसूल हैं जो काफी सख्ती से लागू होते हैं। अच्छा, जैसे? मुर्दों को गर्भगृह में, यानी वो अंदरूनी हिस्सा जहाँ असल शिवलिंग है, वहां जाने के लिए कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनना होता। कमीज, बनियान सब उतारना पड़ता है, बेल्ट भी। ओह, ये तो काफी मखसूस है। जी। और खवातीन के लिए सादा रवायती लिबास पहनना जरूरी है, जिसमें कंधे और घुटने ढके हों। ठीक है। और पूजा वगैरह क्या सब अंदर जा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हाँ, सभी अकीदतमंदों को गर्भगृह तक जाने और दर्शन करने की इजाजत है। ये तो बहुत अच्छा है। और वो खुद अभिषेकम भी कर सकते हैं, मतलब शिवलिंग पर दूध, पानी वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये सहूलत बहुत कम जगहों पर मिलती है। सही। बाकी पंडितों से खास पूजाएं जैसे रुद्रा अभिषेकम वगैरह भी करवा सकते हैं। अंदर जाने की कोई फीस नहीं, लेकिन खास पूजा के लिए चार्जेस होते हैं। और फोन, कैमरा? वो सब मना है। मोबाइल फोन, कैमरे और चमड़े की कोई भी चीज, बेल्ट, बटुए अंदर नहीं ले जा सकते। सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाते हैं। ठीक है। और आसपास तो एलोरा गारें हैं ही। जी, वो तो बिल्कुल पास हैं। साथ में दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा भी ज्यादा दूर नहीं। रहने के लिए भी वेरुल या एलोरा में होटल, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि एक घर्षणेश्वर मंदिर घुश्मा की बेमिसाल रहमदिली की एक जीती जागती यादगार है। बिल्कुल। और तारीख में बार बार तबाह होने के बावजूद उसका फिर से खड़ा होना उसकी लचक को जाहिर करता है। उसका तर्ज तामीर और खासकर वो गर्भगृह के उसूल उसे मुनफरिद बनाते हैं। और आखिर में ये सोचने की बात रह जाती है, अगर ये वाकई साइज में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है तो इसकी कहानी जो इतनी बड़ी है, रहम, माफी और साबित कदमी की, वो हमें क्या बताती है? क्या रूहानी अजमत का ताल्लुक जिस्मानी साइज से होता है या उन अकदार से जिनकी वो जगह नुमाइंदगी करती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां सच्ची भक्ति ने एक मृत बेटे को फिर से जीवित कर दिया था? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आस्था का वो चमत्कार है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। लीजिए, आ गई वो जानकारी जिसका आपको इंतजार था। नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन पर। महाराष्ट्र के वेरुल गांव में विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के साये में बसा है ये अद्भुत धाम। और दोस्तों, ये सिर्फ पत्थर और दीवारों की इमारत नहीं, बल्कि ये वो पवित्र धरती है जहां करुणा, विश्वास और क्षमा की एक ऐसी जीवंत गाथा लिखी गई जो आपके दिल को छू जाएगी। शिव पुराण के अनुसार इसी गांव में सुधर्मा नाम के एक विद्वान अपनी 2 पत्नियों सुदेहा और घुश्मा के साथ रहते थे। घुश्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी भक्ति में एक अद्भुत समर्पण था। वो हर दिन मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती थीं और फिर उन्हें पास की ही एक पवित्र तालाब में विसर्जित कर देती थीं। उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन इस खुशी से घुश्मा की बड़ी बहन सुदेहा के मन में ईर्ष्या की ऐसी आग भड़की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और जो अगली बात है वो तो आपको हिला के रख देगी। एक रात ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने अपनी ही बहन के सोते हुए बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुश्मा रोज पूजा करती थी। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया, सब बिलख रहे थे, पर घुश्मा एक मूर्ति की तरह शांत थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास की एक अडिग चमक थी। दुनिया के लिए उनका बेटा जा चुका था, पर उनके लिए तो उनके भगवान देख रहे थे। उन्होंने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो टूटे दिल के साथ लेकिन अटूट विश्वास से अपनी पूजा करने लगी। जैसे ही उन्होंने पूजा के बाद शिवलिंग विसर्जित किए, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। उनका बेटा तालाब से हंसता खेलता जिंदा बाहर निकल आया।
उसी पल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और घुसेहा को उसके पाप का दंड देना चाहा, पर घुष्मा ने रोते हुए अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। इनकी इस असीम करुणा और क्षमा भाव को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और घुष्मा के आग्रह पर वहीं घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद ही पता होंगी। पहला, ये मंदिर 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने नष्ट कर दिया था, लेकिन इसे 18वीं शताब्दी में महान मराठा रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने फिर से अपने हाथों से बनवाया, जिन्होंने देश भर में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। दूसरा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा मंदिर है और शायद यही इसकी खासियत है। इसका छोटा आकार भक्तों को भगवान के साथ एक गहरा व्यक्तिगत और शांत अनुभव देता है। तीसरा, यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के सामने अपना पद, अहंकार और भौतिक पहचान को त्याग कर एक भक्त के रूप में जाने का प्रतीक है। और चौथा, इस पवित्र शिव मंदिर की दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की बेहद खूबसूरत नक्काशी मिलेगी। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि हरिहर के मिलाप का यानी भारत की एकता और सब धर्म एक है की भावना का एक खूबसूरत संदेश है। घुष्मा की भक्ति और क्षमा की इस अद्भुत कहानी ने आपके दिल को कहां तक छुआ? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक संदेश सब तक पहुंचे। और ऐसी ही दिव्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जहां अडिग विश्वास ने मृत्यु को भी झुका दिया, जहां निस्वार्थ क्षमा ने क्रोध पर विजय पाई, वही है घुष्मेश्वर की पावन धरती, जहां बरसती है शिव की कृपा की परछाई। वादा है अगला वीडियो दुगना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।